شام کے تاریخی شہروں حلب اور ادلب میں باغیوں نے حملے کیے اور قبضے کی کوشش بھی کی، تاہم شامی فوج باغی حملوں کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ روسی اور شامی افواج کی مشترکہ کارروائیوں میں اب تک 1300 سے زائد باغی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شام میں باغیوں کے خلاف شامی فضائیہ کی بھرپور کارروائیاں، حلب، حما اور ادلب میں درجنوں باغی ہلاک کر دیے۔ روس بھی شامی فوجیوں کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور شامی فوج کے ساتھ مشترکہ کارروائیوں میں بھی شامل ہے۔ شامی فوج نے حما میں باغیوں کے ڈرون کو مار گرایا، 2 باغیوں کو گرفتار کر لیا، دشمن کے آپریشن روم کمانڈ سینٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شام کے مختلف علاقوں میں 300 سے زائد باغی مارے جا چکے ہیں۔ باغیوں کی 63 سے زائد املاک تباہ کر دی گئیں۔ جھڑپوں کے باعث عراق اور شام کی سرحد بند کر دی گئی ہے۔ عراقی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ عراق کی سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اقدام اٹھانا ضروری تھا، تاہم دہشت گردوں کے خلاف اپنی فوج شام بھیج رہے ہیں۔ قبضے کی کوشش بھی کی، تاہم شامی فوج باغی حملوں کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ روسی اور شامی افواج کی مشترکہ کارروائیوں میں اب تک 1300 سے زائد باغی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شام میں باغیوں کے خلاف شامی فضائیہ کی بھرپور کارروائیاں، حلب، حما اور ادلب میں درجنوں باغی ہلاک کر دیے۔ روس بھی شامی فوجیوں کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور شامی فوج کے ساتھ مشترکہ کارروائیوں میں بھی شامل ہے۔ شامی فوج نے حما میں باغیوں کے ڈرون کو مار گرایا، 2 باغیوں کو گرفتار کر لیا، دشمن کے آپریشن روم کمانڈ سینٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شام کے مختلف علاقوں میں 300 سے زائد باغی مارے جا چکے ہیں۔ باغیوں کی 63 سے زائد املاک تباہ کر دی گئیں۔ جھڑپوں کے باعث عراق اور شام کی سرحد بند کر دی گئی ہے۔ عراقی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ عراق کی سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اقدام اٹھانا ضروری تھا، تاہم دہشت گردوں کے خلاف اپنی فوج شام بھیج رہے ہیں۔ قبضے کی کوشش بھی کی، تاہم شامی فوج باغی حملوں کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ روسی اور شامی افواج کی مشترکہ کارروائیوں میں اب تک 1300 سے زائد باغی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شام میں باغیوں کے خلاف شامی فضائیہ کی بھرپور کارروائیاں، حلب، حما اور ادلب میں درجنوں باغی ہلاک کر دیے۔ روس بھی شامی فوجیوں کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور شامی فوج کے ساتھ مشترکہ کارروائیوں میں بھی شامل ہے۔ شامی فوج نے حما میں باغیوں کے ڈرون کو مار گرایا، 2 باغیوں کو گرفتار کر لیا، دشمن کے آپریشن روم کمانڈ سینٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شام کے مختلف علاقوں میں 300 سے زائد باغی مارے جا چکے ہیں۔ باغیوں کی 63 سے زائد املاک تباہ کر دی گئیں۔ جھڑپوں کے باعث عراق اور شام کی سرحد بند کر دی گئی ہے۔ عراقی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ عراق کی سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اقدام اٹھانا ضروری تھا، تاہم دہشت گردوں کے خلاف اپنی فوج شام بھیج رہے ہیں۔ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک دم نہیں ہوا، بلکہ اس خانہ جنگی کے پیچھے ایک گہری اور پیچیدہ سازش ہے، جس میں اسرائیل، کرد ملیشیا اور مغربی طاقتوں کا گٹھ جوڑ شامل ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد شام کو عدم استحکام کا شکار کرنے اور اسرائیل کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی ٹی وی آج اس سازش سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ شام میں عدم استحکام، کرد ملیشیا، امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ یہ گروپ شام کی حکومت کو کمزور کرنے اور علاقے میں اسرائیل کے لیے ایک بفر زون بنانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیل کردوں کی حمایت اس لیے کر رہا ہے تاکہ خطے میں ایران اور شام کی طاقت کو محدود کیا جا سکے۔ دوسری جانب امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں شام میں جمہوریت کے نام پر اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد اسرائیل کے مفادات کا تحفظ اور مشرق وسطی میں اپنی بالادستی قائم رکھنا ہے۔ دوسری جانب ترکی اگرچہ فلسطین کا حامی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن شام کے کرد علاقوں پر اس کے حملے بالواسطہ طور پر اسرائیل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ترکی کی شام میں کارروائیاں کردوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ہیں، لیکن اس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے، کیونکہ کرد اور شامی حکومت کے درمیان تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تحریل الشام ایک منصوبہ بند حکمت عملی دکھائی دیتی ہے۔ شام کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کا مقصد حزب اللہ اور حماس کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، کیونکہ بشار الاسد ان دونوں بڑے گروپس کی سپلائی لائن ہیں اور یہ دشمن کو نہ بھایا۔ فلسطین اور لبنان کی جنگ سے دنیا بھر کے مظلومین ایک ہو گئے تھے اور دنیا بھر کے مسلمان متحد ہوئے تھے، لیکن دشمنان اسلام کو کسی صورت یہ اتحاد نہ بھایا، اس لیے وہ شام کے اندر اپنے اہداف کے تحت
आग लगाकर उम्मत को फिरका वाराना तकसीम करने के दर पे हैं। गाजा की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। इसराइली फौज की गाजा में दहशतगर्दी जारी है। नसीरात, रफा, खान यूनिस, दीर अल-बला में पे दर पे हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइली फौज हमलों में अपने 30 से जायद कैदी भी मार चुकी है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में मुलाकात की और गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। गाजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,466 हो गई, 1,05,358 जख्मी हैं। नसीरात, रफा, खान यूनिस, दीर अल-बला में पे दर पे हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइली फौज हमलों में अपने 30 से जायद कैदी भी मार चुकी है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में मुलाकात की और गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। गाजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,466 हो गई, 1,05,358 जख्मी हैं। नसीरात, रफा, खान यूनिस, दीर अल-बला में पे दर पे हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइली फौज हमलों में अपने 30 से जायद कैदी भी मार चुकी है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में मुलाकात की और गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। गाजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,466 हो गई, 1,05,358 जख्मी हैं। नसीरात, रफा, खान यूनिस, दीर अल-बला में पे दर पे हमलों में मजीद 14 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइली फौज हमलों में अपने 30 से जायद कैदी भी मार चुकी है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में मुलाकात की और गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। गाजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,466 हो गई, 1,05,358 जख्मी हैं। में सेहूनी फौज के फजाई हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद और 96 जख्मी हो गए। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम, चप्पे चप्पे पर मौत के साए। सेहूनी जंगी तैयारों ने बैतुल्लाहिया में इमारत को मिसाइल दागकर मलिया मेट कर दिया। हमले में 12 फलस्तीनी जान से गए। गजा सिटी में भी 3 मंजिला इमारत बमबारी से तबाह हो गई। इसके नतीजे में 5 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस, दीर अल-बला में भी रिहायशी मकामात पर हमलों में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी हमले तेज कर दिए। ओखबा गाँव के करीब कार पर मिसाइल हमले में 2 फलस्तीनी जान से गए। उधर तुबास में अल-कसाम ब्रिगेड और सेहूनी फौज में शदीद झड़प हुई, इसमें सेहूनी फौज को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने दावा किया कि 7 अक्टूबर हमले में मुलब्बिस हमास के 7 अरकान को मार दिया है। सेहूनी फौज ने जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में सोर शहर और इसके मज़ाफ़ात में हमले किए, जिसके नतीजे में 12 लबनानी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने कहा है कि इसने हिजबुल्लाह के दर्जनों अहदाफ पर हमला किया और शहरियों को खबरदार किया है कि वो ममनुआ इलाकों में जाने से गुरेज करें। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इजराइल बाज न आया। इजरायली फौज अब भी लेबनान की रिहायशी इमारतों पर हमले कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ हुए हमलों में 11 अफराद शहीद हो गए। लेबनान में तकरीबन 4,000 अफराद शहीद जबकि 16,520 जख्मी हुए। इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी मकबूजा इलाके में इजराइल की मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद शहीद मुजाहिदीन की आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन भी की गई। इजरायली फौज अब भी लेबनान की रिहायशी इमारतों पर हमले कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ हुए हमलों में 11 अफराद शहीद हो गए। लेबनान में तकरीबन 4,000 अफराद शहीद जबकि 16,520 जख्मी हुए। इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी मकबूजा इलाके में इजराइल की मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद शहीद मुजाहिदीन की आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन भी की गई। इजरायली फौज अब भी लेबनान की रिहायशी इमारतों पर हमले कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ हुए हमलों में 11 अफराद शहीद हो गए। लेबनान में तकरीबन 4,000 अफराद शहीद जबकि 16,520 जख्मी हुए। इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी मकबूजा इलाके में इजराइल की मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद शहीद मुजाहिदीन की आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन भी की गई। इजरायली फौज अब भी लेबनान की रिहायशी इमारतों पर हमले कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ हुए हमलों में 11 अफराद शहीद हो गए। लेबनान में तकरीबन 4,000 अफराद शहीद जबकि 16,520 जख्मी हुए। इजराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी मकबूजा इलाके में इजराइल की मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद शहीद मुजाहिदीन की आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन भी की गई। इजरायली फौज अब भी लेबनान की रिहायशी इमारतों पर हमले कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ हुए हमलों में 11 अफराद शहीद हो गए। लेबनान में तकरीबन 4,000 अफराद शहीद जबकि 16,520 जख्मी हुए।
है। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी मकबूजा इलाके में इसराइल के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के 200 से जायद शहीद मुजाहिदीन की आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन भी की गई। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर का ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है जब वो ये कहते हैं कि हम जहन्नुम बना देंगे मशरिक़ वस्ता को। अभी तो उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब उनकी मुनक्किद नहीं हुई, अपने ओहदे का हल्फ नहीं लिया, लेकिन पहले से ये बयान जो दिया गया इसकी क्या अहमियत है। और दूसरा जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि वो जब आएंगे तो जंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या फिर वो पीस डील की तरफ जाएंगे, जिस तरह से लेबनान से भी मुआहदा हुआ, लेकिन हम इसके बरअक्स देख रहे हैं उनके जो बयानात आ रहे हैं। देखिए, ये जो लेबनान के साथ हुआ है ये तो इसमें लेबनान की इंटरनल डायनामिक्स को भी दखल है, क्योंकि वहाँ पे सेक्टेरियन एक डिनोमिनेशंस काफ़ी हैं। हिजबुल्लाह है, फिर वो सुन्नी एलिमेंट्स हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, तो वो एक बैलेंस्ड एथनिसिटी वाला मुल्क है और बहुत से जो एथनिसिटीज़ हैं वो इस जंग में नहीं इसको प्रोलॉन्ग करना चाहते थे। तो हिजबुल्लाह का भी ये व्यू पॉइंट अल्टीमेटली ये हुआ कि ये जंग बंदी हो, क्योंकि वो भी उनको खासा नुकसान हुआ था। तो लेबनान की जंग बंदी तो उस तनाजुर में देखनी चाहिए, मगर जहाँ तक गाजा का ताल्लुक है तो हमास और इजराइल इनका जो आपस में स्टैंड ऑफ है वो इस वक्त किसी मंतकी अंजाम की तरफ या ट्रूस की जानिब नहीं जा रहा। गो कि इसकी कोशिशें हो रही हैं, अभी इजिप्ट में भी एक ट्रूस की वो टॉक्स जारी हैं, मगर अभी तक हमास का जो रवैया है वो बेलचक है हॉस्टेजेस के मामले में। और नेतन्याहू जो जिनकी जो इलेक्टोरल साख खासी गिर रही थी, अब वो जंग की वजह से उनकी कोई इलेक्टोरल रेटिंग्स भी बेहतर हुई हैं और लगता ऐसे है कि उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं वो भी जंग की दवालत को की तरफ जाना चाहते हैं और कोई ऐसा डील लेना चाहते हैं जिसमें उनको जीत का एलिमेंट मुज़मिर हो। जिसमें अब यहाँ पे आते हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि अभी तक उन्होंने सदर हल्फ नहीं उठाया, मगर उससे पहले ही इस किस्म की वो स्टेटमेंट्स देना शुरू किए हैं। जो उनके मैवरिक होने की दलील है वो पहले भी ऐसी स्टेटमेंट्स देते आए हैं, क्योंकि मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, वो बात कर जाते हैं जो बाकी जो स्टेट्समैन शायद नहीं कहते। मगर यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, इन दोनों की जो इजराइल पॉलिसी है प्रो इजराइल, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ख़ास तौर पे ये जो इजराइल का और इस वक्त गाज़ा में स्टैंड ऑफ है, मेरा ख्याल है कि चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, हाँ ये ट्रम्प साहब बातें ज़्यादा करते हैं, उनको वैसे भी वो आपको मालूम है उनका एक स्टाइल है। और ऐसे मर्क्यूरियल इंसान से कुछ بعید नहीं कि वो आके हो सकता है कि वो इजराइल की तरफ भी थोड़ा सख्त रवैया रखें कि हम आपको बहुत ज़्यादा जो हम एड दे रहे थे शायद वो उतना ना दे सकें। मगर जो टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ दोनों का, डेमोक्रेट्स का और ये अक्रॉस द बोर्ड इनका कंसेंसस है। और अब इस जंग में वो जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, आपने देखा है कि सीरिया में भी उसको आहिस्ता आहिस्ता क्रीप इन कर रहा है कि जो हयातुल तहरीर शाम है उसने जो हल्फ पे कब्जा किया, उसके बाद आगे वो क्रीप इन कर रही है और उसको सपोर्ट हासिल है जो गालिबन टैसिट सपोर्ट, ओवर्ट तो नहीं, अमेरिका की और तुर्की की भी मामनत है। तो दूसरी जानिब रूस है और ईरान है और उसकी जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक जो सवाल पैदा होता है कि कतर में मुज़ाकरात होते रहे, कोशिश होती रही कि यरगमालियों के हवाले से जो इसराइल का मौक़िफ़ है और फिर जो पैलेस्टीन जंग बंदी के हवाले से बात कर रहा है कि आप अपनी टेरिटरी में वापस जाएं, इस पर कोई नतीजा खेज़ जो है मुज़ाकरात हो। लेकिन हमने देखा कि कतर के मुज़ाकरात में डिस्पाइट ऑफ द इंटरवेंशन हमें फ्रांस और बरतानिया की भी नज़र आई, कोई हल की तरफ नहीं गए मामला। अब नई अमरीकी इंतज़ामिया आएगी, अब नई अमरीकी इंतज़ामिया से जो आम आवाम है उसकी बड़ी उम्मीदें हैं, ख़ुसूसन अमेरिका में भी, कि कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। लेकिन इन स्टेटमेंट से अमेरिका की पॉलिसी स्टेटमेंट तो ये लगती है कि जंग की तरफ मज़ीद धकेला जाएगा और ये जो जंग जारी है ये रुकने का नाम नहीं लेगी। अब जी, लग तो बज़ाहिर ऐसा ही रहा है और अमेरिका ने कोशिश की है बसात भर के वो सऊदी अरेबिया को भी डिफेंस एग्रीमेंट
کی کیرٹ دکھا کے اس کو بھی اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں لائے اور اس پہ جو تھوڑا لچک دکھائے سعودی عربیہ 2 اسٹیٹ سلوشن پہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہوں اور اس کے بعد پریشر ڈالا جائے. مگر سعودی عربیہ نے وہ جو ان کا اوورچر تھا اس کو نظر انداز کر دیا ہے اور ابھی تک وہی سٹانس رکھا ہے کہ ہم اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے جب تک یہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی کوئی گارنٹی نہیں دے گا. تو وہاں تو چیزیں رکی ہوئی ہیں. تو امریکہ کا تو رویہ اور امریکہ کا جو اس پہ ایٹیچیوڈ ہے بڑا واضح ہے. اور اب وہ پوسٹ کانفلکٹ غازہ کا جو انتظام ہوگا اس کی طرف اسرائیل کی نظریں ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی حماس کی پریزنس ہو کسی بھی صورت. اور وہ اس پہ جیسا کہ ان کا پہلے وتیرہ رہا ہے کہ ہر کانفلکٹ کے بعد انہوں نے کانفلکٹ زون میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے, کچھ ٹیریٹری ضم کر لی ہے, کچھ پہ ویسے اپنا وہ عملداری قائم کی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ویسٹ بینک میں ایک ارینجمنٹ رکھی ہوئی تھی اس طریقے سے ابھی غازہ میں اس کو مزید اپنا کنٹرول جو اس کو مضبوط کریں گے. تو اس کے چونکہ خد و خال واضح نہیں ہے اور حماس کو اسی چیز کی وہ شکایت ہے, اس پہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ اگر تو اسرائیل گارنٹیز ہی نہیں دے رہا کہ ہم ہاسٹیج اگر ریلیز کر دیں اس کے بعد کس قسم کا یہاں پہ وہ انتظام قائم کریں گے, کس کی عملداری ہوگی, کیا ادھر کوئی آکوپائنگ ٹروپس ہوں گے, کیا اس کے جو ہمارے جو باہر آنے جانے کے راستے ہیں ان پہ وہ چیک پوائنٹس لگائیں گے. تو وہ چیزوں پہ چونکہ کلیئرٹی نہیں ہے تو نہ حماس بچ کر رہا ہے اور اسرائیل جو نیتن یاہو اور اس کی ہارڈ لائن کیبنٹ ہے وہ تو بہرحال اس کانفلکٹ سے مستفید ہو رہے ہیں بیکاز ان کی اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی اور اس کا کوئی امیڈیٹ ٹروس ہو جاتا تو وہ اس کو نقصان ہونا تھا.